उसकी शुरुआत कल से होने जा रही है और आप सभी समाचार माध्यमों से के प्रतिनिधि, उसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आप सबसे मुखातिब होने के लिए और प्रेस मीट में तमाम जानकारियाँ आप सबके माध्यम से देश दुनिया तक पहुँचे, इसके लिए हम सबके बीच यहाँ मंच पर हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेरिटेज एंड टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा काला रामचंद्रन जी, उनकी गर्मामयी उपस्थिति है। इसके अलावा सत्येंद्र कुमार गुप्ता जी, पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद, विक्रम सिंह जी, उपायुक्त फरीदाबाद, डॉक्टर सुनील कुमार जी, मैनेजिंग डायरेक्टर हरियाणा टूरिज्म और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर सूरजकुंड मेला अथॉरिटी, अभिषेक जोरवाल जी भी हम सबके साथ, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, और इसके अलावा भारती शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एडिशनल डायरेक्टर जनरल, आशुतोष राजन जी, जनरल मैनेजर हरियाणा टूरिज्म। और आप जानते हैं कि ओडिशा और मध्य प्रदेश हमारे थीम स्टेट हैं और हमें बहुत खुशी है कि इस प्रेस मीट में विशेष तौर पर हम सबके बीच यहाँ उपस्थिति है मृणालिनी जायसवाल जी, रेजिडेंट कमिश्नर ओडिशा से उनका आगमन हुआ है, और साथ ही मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व यहाँ से देवेंद्र राव जी कर रहे हैं। एक बार कर्तव्य ध्वनि के साथ एक ऊर्जा का स्पंदन तो होना चाहिए। सभी का स्वागत आप सबका और मंचा से विभूतियों का आप सबकी तालियों के साथ, और सबका वंदन अभिनंदन करते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेरिटेज एंड टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा काला रामचंद्रन जी से कि वे आपसे रूबरू हों, मुखातिब हों। बीएससी मैडम। On behalf of the Ministry of Tourism, Haryana Tourism and District Administration Faridabad, I welcome you all to the press conference for the 38th Surajkund Mela. As you all know, the Mela is organized by the Surajkund Mela Authority with the Union Secretary of the Ministry of Tourism as the chairperson, and it is in collaboration with the Union Ministries of Tourism, Culture, Textiles, External Affairs, and of course the Haryana government. The Mela started in 1987 and it has grown from strength to strength over the years. In 1989, the concept of theme state was introduced for the first time, and Rajasthan was the first state which stepped forward as the theme state. And then 20 years later, in 2009, the inclusion of a partner nation elevated the Mela to an international level, and our first partner nation was Egypt. This year, we are pleased to say that Odisha and Madhya Pradesh are our theme states. We are offering multilateral cross-cultural exchange, enriching the Mela's ambience through their art, heritage, culture, cuisine, and their performances. The Mela also serves as a launchpad for small and medium enterprises, empowering artisans to scale their businesses. We have over 600 foreign participants who are expected to participate in the Mela this year from over 40 nations. These include Syria, Iran, Russia, Egypt, Afghanistan, Belarus, African and Central Asian countries, along with the BIMSTEC organization, which is our partner this year. The nations from BIMSTEC comprise Myanmar, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Thailand. We are proud to say that the Northeast Handlooms and Handicraft Development Corporation is our cultural partner. It represents the diverse, intricate craftsmanship of all the 8 northeastern states. And the collaboration strengthens the cultural ties and promote the unique textiles, handicrafts, cuisines of the Northeast in the Mela. This year, for the first time, to enhance the visitors' convenience, we have partnered with the Delhi Metro Railway Corporation. DMRC is our ticketing and parking partner. The entry and parking tickets will be available online through the surajkundmela.co.in as well as the DMRC website and at all the metro stations besides the Mela gates. Insofar as the stalls are concerned, there are 1,220 stalls which have been set up by theme states and cultural partner, as well as central government ministries and organizations, including the ministries
of textile, social justice, rural development, jute board, NABARD, etc. We also confer awards to outstanding craftsperson who are participating in the Mela. These include the Kala Ratna, Paramparagat, Kala Mani, Kala Nidhi and Kala Shri awards, which are much sought after. This year, besides the pavilions that are being set up by the theme states, that is Odisha and Madhya Pradesh, other states like Rajasthan, Jharkhand and Goa are also setting up their own pavilions to showcase their tourism potential and their heritage. We would also invite you to visit the pavilion that is being set up by the Haryana State Archaeology Department, which will showcase Haryana's rich heritage starting from the prehistoric era continually up to the historic period. The Mela authorities, in partnership with the Haryana Art and Culture Department, has also this time set up a rich lineup of performances. Some of the events would be musical performances by Dr. Satinder Sartaj, Mambe Khan, Papon, Gurtaj, among others. This time we also have a poetic interaction with the award-winning Bollywood lyricist and poet Dr. Irshad Kamil. Classical dance performances by Priya Venkatraman, Devika Devendra Mangalamukhi, as well as a stand-up comedy show for the first time in the Mela, and cultural performances by Odisha, Madhya Pradesh, fashion show, and apart from this we have daily performances by the Banchari, Been Sapera, Nagada Party, magic shows, bamboo walkers, which will add to the rich ambience of the Mela. As you would have noticed, the amusement zone is also offering all kinds of fun rides for the children who will come to the Mela. We have the Apna Ghar of Haryana, which will show you the culture of Haryana, which has always been very popular with the visitors. A golf cart, battery operated rickshaws will be available on request. Delicacies from across the India will be available at the food court. Besides which, both Odisha and Madhya Pradesh are setting up their own food stalls there. I once again thank you all for coming today and welcome you all to enjoy this 17-day extravaganza starting from February 7th and ending on 23rd. The Union Minister for Tourism and Culture will be the chief guest on 7th, and Dr. Jaishankar, the Minister for External Affairs, will be the chief guest on the closing ceremony of the Mela. Thank you so much and most welcome. माइक्रोफोन के साथ हमारे साथी आपके बीच में हैं। आप एक बार हाथ उठाएंगे, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ प्लीज खड़े होकर, नहीं तो देख नहीं पाएंगे। तेजेंद्र शर्मा फ्रॉम हरिभूमि। मेला परिसर में सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्या क्या रहेंगे उसके बारे में बताया जाए। एक बार अपना सवाल प्लीज फिर से रिपीट कर दें शर्मा जी। मेला परिसर में जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं किस किस लेवल पर रहेंगे उसके बारे में पूरा बताया जाए। सिक्योरिटी अरेंजमेंट के बारे में एज यू कैन सी, आप जैसे देख सकते हैं सीपी फरीदाबाद हमारे बीच में है, इनके डीसीपी यहाँ हैं। डीसीपी अभिषेक जोवल जो है वो हमारे मेला पुलिस अधिकारी हैं। He will be in charge of the entire Mela security arrangement under the supervision of the CP, and we assure you कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट का पुख्ता इंतजाम किया गया है और कोई शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू। Madam Namaskar, Pradeep Kumar. I do cover English newspaper Millennium Post. What the BIMSTEC countries is? अब प्लीज कंटिन्यू सर, वो दूसरे माइक्रोफोन से। What the BIMSTEC countries is here today? Will they show their crafts items or they will just their guests?
They are setting up stalls and they are sending their cultural artists who will perform in the beam state. Both stalls, artisans and artists, cultural artists. It consists of Myanmar, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Thailand, and of course India. BIMSTEC. Next, please. Sir. अनिल बेताब, दैनिक जागरण। मैं ये जानना चाहता हूँ कि थीम स्टेट 2 है इस बार, तो ये प्रयोग आपकी तरफ से था या उनका प्रयास किया गया दोनों राज्यों का? हम यहाँ लिखी थी, कई सारे स्टेट्स को लिखी थी टू इनवाइटिंग देम टू बी आवर थीम स्टेट। उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश स्टेप फॉरवर्ड एंड दोनों ने बोला कि हम थीम स्टेट बनना चाहते हैं, तो हमने सोचा दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एनरिच द मेला फर्दर और हमने दोनों को इनवाइट किया। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नव वर्ष की मंगल शुभकामनाएं और साथ थोड़ा ही माइक में जिक्र किया। साथ ही इस मेले को सही तरीके से ले जाने के लिए चलाने के लिए भी आपको शुभकामनाएं। मैं सुनील परिहार टीवी 100 से। मेरा सवाल ये है कि हर बार मेला जैसा लगता है वैसे ही चलेगा या कुछ नया मेले में आप करने जा रहे हैं, वो बताएं प्लीज। नया तो जैसे आपने पहले ही देख लिया कि थीम स्टेट ही हमारा इस बार 2 है एंड पार्टनर नेशन नॉर्मली एक होता है। इस बार पार्टनर नेशन क्योंकि बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर कर रहा है तो नेशंस इतने आ रहे हैं तो वो एक वैरायटी एंड कल्चरल रिचनेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा हमने टिकटिंग पार्टनर जो है हमने दिल्ली मेट्रो को साथ ले लिया है तो वो टिकटिंग पार्टनर हमारे बन गए हैं। हमारे एडवर्टीजमेंट जो हैं वो भी दिल्ली मेट्रो के हर स्टेशन में चल रहे हैं अगर आपने ध्यान दिया हो। चौथी बात ये कि इस बार पेविलियंस नॉर्मली पेविलियंस जैसे थीम स्टेट लगाते हैं, इस बार राजस्थान में भी पेविलियन लगा रहे हैं, झारखंड भी पेविलियन लगा रहा है, गोवा भी पेविलियन लगा रहे हैं। और हमारे सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं हमने आर्ट एंड कल्चर के साथ पार्टनर किया है, स्टेट आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के साथ। सो वी हैव अ रिचर अरे ऑफ प्रोग्राम्स along with our theme nations who are theme states who have been very cooperative and enthusiastic in कोई ब्रांड एम्बेसडर इसकी मेरे को ऐसा कोई ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा स्टेट इज द ब्रांड एम्बेसडर, वी आर द होस्ट, वी आर हरियाणा। हमारे सारे आर्टिस्ट और हमारे सारे आर्टिजन हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। मैम नमस्कार। will not have a problem from tomorrow onwards. थैंक यू सो मच। नमस्कार मैम, मेरा नाम मुकेश राजपूत है और मैं जनता टीवी से हूँ। मेरा एक सवाल है कि पार्किंग की व्यवस्था बेहतर की गई है, लगभग 12,000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है, तो क्या माने कि इस बार जो सूरजकुंड मेला है उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा आने वाली, लोगों का क्राउड बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्या इस तरह की कोई व्यवस्था को लेकर किया गया है? और सीसीटीवी की जो यहाँ पर व्यवस्था की गई वो किस तरीके से है? देखिए जहाँ तक पार्किंग का सवाल है, we would always like that more and more people visit the Mela. Like I told you, this time we have partnered with the Delhi Metro Corporation for the parking. And अगर आपको याद होगा, आप पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे तो मंत्री जी ने एक मुद्दा उठाया था कि पार्किंग इस बार ज़्यादा होनी चाहिए, उसी को मद्दे रखते हुए हमने ज़्यादा पार्किंग किया है। सीसीटीवी मेले में ऑपरेशनल है, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। नमस्कार, मैं किशोर शर्मा गुड़गांव से। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस बार जो मीडिया है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया, तो सोशल मीडिया का जैसे माना जाता है, आप ये कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इस बार का सोशल मीडिया की एंट्री लेने की बैन है, कुछ पत्रकारों की आपत्ति है कि सोशल मीडिया को रोका जा रहा है। सोशल मीडिया का बिल्कुल बैन नहीं है, वी वेलकम सोशल मीडिया। इनफैक्ट कल मैं यहाँ पे अरेंजमेंट्स का देख रही थी तो कई सारे सोशल मीडिया वाले अंदर बैठ के वीडियोज ले ही जाते, किसी ने उनको रोका नहीं। एक मिनट, इसमें अगर आपको याद होगा ये डिसाइड हुआ था कि जो सोशल मीडिया हैंडल्स 10,000 से ऊपर फॉलोअर्स हैं, we will
facilitate that. Yeah, there should be guidelines for anyone. About 10,000 and above followers, the DPRO is taking care of that. Please don't worry about it. I would request. मेरा नाम डॉक्टर मृणालिनी है। मैं विशेष रेजिडेंट कमिश्नर हूँ और आज मैं उड़ीसा स्टेट को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं भारतीय कल्चर विभाग और हरियाणा कल्चर विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमें ये अवसर प्रदान किया गया है कि हम उड़ीसा की ऐतिहासिक संस्कृति को पूरे देश के सामने इतने बड़े मेले में जहाँ पे लाखों लाखों प्रतिभागी रहते हैं हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। और हमारी ओर से बहुत विस्तृत अरेंजमेंट्स की गई हैं आपके मनोरंजन के लिए, आपके खान के लिए, आपके उड़ीसा की संस्कृति को आपको परिचय कराने के लिए, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कुछ ही सप्ताह पहले उड़ीसा कॉन्क्लेव में उड़ीसा आकर हमको काफ़ी मोटिवेट करके गए हैं कि उड़ीसा की संस्कृति को आगे लाया जाए। उड़ीसा बहुत शीघ्र भारत का अग्रणी इंडस्ट्रियल टूरिस्ट राज्य के रूप में विकसित होने जा रहा है। इसलिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी और हमारी उप मुख्यमंत्री जो कल आएंगी प्रभाती परिड़ा मैडम, उनके डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में हम लोग यहाँ आए हैं। और आज यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई जब हमने फीडबैक दिया कि उड़ीसा की ओर से बहुत अच्छा यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है। मैं उड़ीसा सरकार की तरफ से और हमारे सांस्कृतिक प्रतिभागियों की तरफ से आप सबका उड़ीसा पवेलियन में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप हमारे सत्कार के प्रतिभागी रहेंगे, हमारे खान पान का आनंद उठाएंगे, हमारे कल्चरल और सांस्कृतिक प्रोग्राम्स का के प्रतिभागी होंगे, जिसमें पद्मश्री इलियाना सीगारिस्टी आपको ओडिसी नृत्य प्रस्तुत करेंगी, अरुणा मोहंती जी हैं, हमारे पद्मश्री सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक जी की कलाकृति आप आज भी देख पाएंगे जो प्रवेश द्वार पे उन्होंने बनाई है। उसके अलावा संबलपुरी नृत्य, गोतीपुआ नृत्य, कई तरह के नृत्य हम आपके लिए प्रस्तुतिकरण के लिए हम लेकर आए हैं। मेरी आशा है आप लोग उड़ीसा को इस मेले के द्वारा आप बहुत अच्छे से जानेंगे और उसके बाद आप आनंदित होंगे और उड़ीसा आएंगे और हमें अपने सत्कार का अपॉर्चुनिटी देंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और मैं फिर आशा करती हूँ कि आप लोग उड़ीसा पवेलियन आकर खूब एंजॉय करें, हमें अपना फीडबैक दें, क्योंकि हमारा निरंतर प्रयत्न यही रहेगा कि उड़ीसा को हम बहुत अच्छी तरह से पूरे देश के सामने और पूरे दुनिया के सामने इस मेले के थ्रू प्रस्तुत करें, क्योंकि एक ऐतिहासिक मेला है जिसमें लाखों करोड़ लोग हर वर्ष भाग लेते हैं और उड़ीसा मध्य प्रदेश के साथ इसमें सम्मिलित होकर हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।